Hello friends, today we will study a new chapter of relevant book of class 3, chapter 6, Invitation of Friendship. There was a shepherd boy named Sampath. He would take his sheep for grazing in the meadow daily. One day, Sampath observed his sheep while grazing in the meadow. He always stood resting his back upon the stick. One day, he was in deep thought. Suddenly Sampath threw up his fur cap in the air and performed a jig. He sang loudly, "I have got it! I have got it!" Meanwhile, a young horseman passed by. Sampath's fur cap fell down on the horse's eye and feared him. In fear, he raised his forelegs and stood up his hind legs. With great difficulty, the horseman how controlled the horse. He shouted with great anger, "What do you think yourself? You feared my horse. Can't you take care of your sheep quietly?" Sampath, "Sorry, sir. I did not do it intentionally." Horseman, "But your cap landed on my horse's eyes. He couldn't see and was frightened. I may have fallen." Sampath, "I was excited, so I could not control myself." Horseman, "What was that made you so excited?" Sampath, "Actually, I was thinking about a riddle that my friend has asked me some days back." Horseman, "Riddle? What is it?" Sampath, "Yes, sir. The riddle was that, what is shorter than a hen but taller than a man?" Horseman, "Not possible. How can a thing be shorter than a hen and taller than a man?" Sampath, "A fur cap. Of course, if you wear it, it becomes taller than man, but if you throw it down, it becomes shorter than a hen." Horseman, "Very clever indeed. If you wear it, it becomes taller than man, but if you throw it down, it becomes shorter than a hen." Horseman, "Very clever indeed. You are an intelligent boy. I want a sheep from your flock." Sampath, "Which type of sheep do you want?" Horseman, "I want a sheep that is neither black nor brown nor white in color. It should have spots, but the spots should not be visible. Will you be able to give me such a sheep? I will pay you whatever you demand." Sampath, "Of course, I can, but I sell sheep on special days. You can come any day except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Any other day will do. Is it convenient for you?" Horseman, happily, "You are a clever boy. Please be my friend. Take this flute as a token of our friendship." Horseman gives the flute to Sampath. Now Sampath plays flute every day and people enjoyed his melodious tunes. Now I will explain you this chapter in Hindi. Invitation of friendship यानी न्योता, दोस्ती का न्योता. There was a shepherd boy named Sampath. He would take his sheep for grazing in the meadows daily. One day Sampath observed his sheep while grazing in the meadow. एक संपत नाम का चरवाहा था जो अपने भेड़ों को हमेशा चराने ले जाता था. एक दिन वो बहुत ही ध्यान से अपने भेड़ों को चरते हुए देख रहा था मैदान में और आराम से अपनी लाठी के बैक पीठ लगाकर बैठा हुआ था. वन डे ही वॉज इन डीप थॉट. एक दिन वो बहुत ही गहरे सोच में था कि अचानक से उसने अपनी टोपी जमीन पे हवा में उछलाई और डांस किया. ही sang loudly. उसने जोर से गाना चिल्लाया, "मुझे पता चल गया, मुझे मिल गया." मीनवाइल उसी समय वहां से एक घोड़े में आदमी जा रहा था. जैसे ही संपत ने अपनी हवा में टोपी उछाली, वो टोपी जाके घोड़े की आंख पर गिर गई, जिससे घोड़ा डर गया और वो डर के बैलेंस बिगड़ के उसका क्या हुआ, वो आगे अपने दोनों पैर उठा के खड़ा हो गया. विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से चालक ने उसे कंट्रोल किया. ही शाउटेड विथ एंगर. जो घुड़सवार था वो गुस्से से चिल्लाया, "तुम क्या सोचते हो? तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया. क्या सोच रहे थे? कैन यू टेक, क्या तुम अपने भेड़ों को आराम से शांति से उनकी चरवाही नहीं कर सकते?" संपत उससे बोला, "सॉरी सर, आई डिड नॉट डू इट इंटेंशनली." सर, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया. घोड़सवार बोला, "बट योर कैप लैंडेड ऑन माई हॉर्स आई, ही कुडंट सी एंड फ्राइटेंड आई हैव फॉलन." लेकिन तुम्हारी टोपी मेरे घोड़े के आंख पे आ गई थी, जिससे वो बहुत डर गया, मैं गिर भी सकता था. संपत बोला, "आई वॉज एक्साइटेड सो आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ."
मैं बहुत एक्साइटेड था। संपत, I was excited, so I could not control myself. Horseman, what was that made you so excited? संपत बोला, मैं बहुत ही खुश था, इसलिए मैं अपनी खुशी को काबू में नहीं कर पाया। घुड़सवार पूछा, ऐसा क्या तुम्हारी खुशी का बात थी? संपत बोला, एक्चुअली मुझे एक पहेली का जवाब मिल गया था जो मेरे दोस्त ने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था। घुड़सवार बोला, कौन सी पहेली? संपत बोला, पहेली ये थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुर्गी से भी छोटी है लेकिन आदमियों से भी लंबी है? तो घुड़सवार बोला, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, ना मुमकिन ही नहीं है जो मुर्गी से छोटी और आदमी से बड़ी हो। संपत बोला, अ फर कैप, झबरे वाली टोपी। ऑफ कोर्स, जब हम इसे पहनते हैं तो ये हम लोग से लंबी हो जाती है, टॉलर देन अ मैन। जब हम इसको ज़मीन पे फेंकते हैं तो ये मुर्गी से छोटी हो जाती है। हॉर्समैन बोला, तुम बहुत ही क्लेवर हो, बहुत बुद्धिमान हो। इफ़ यू वियर इट इट बिकम टॉलर देन मैन, अगर तुम उसको पहनते हो तो वो तुमसे लंबी हो जाती है और फेंकते हो नीचे तो वो मुर्गी से भी छोटी हो जाती है। हॉर्समैन, वेरी क्लेवर इंडीड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आई वांट शिप फ्रॉम यू। घुड़सवार बोलता है कि तुम बहुत ही समझदार हो, बुद्धिमान हो, बहुत ही बुद्धिमान लड़के हो, मुझे तुम्हारी झुंड, भेड़ों के झुंड में से एक भेड़ चाहिए। संपत बोलता है, किस टाइप का भेड़ चाहिए? घुड़सवार बोलता है, मुझे एक ऐसी भेड़ चाहिए जो ना काली हो, ना भूरी हो, ना सफ़ेद हो, ना ही उसके में कोई धब्बे हों, और हो भी तो वो दिखे नहीं। क्या तुम मुझे इस तरह की भेड़ दे सकते हो जिसमें ऐसे चीज़ें हों, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा? संपत बोला, हाँ क्यों नहीं, बट आई सेल शिप ऑन स्पेशल डेज, मैं आपको ऐसी भेड़ दे सकता हूँ, जबकि ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसी कोई भेड़ हुआ नहीं करती थी। तो संपत भी बुद्धिमान था, वो बोला, ठीक है, मैं आपको भेड़ दे सकता हूँ, लेकिन मैं भेड़ सिर्फ इन दिनों के अलावा बेचता हूँ, यानी वो वीक डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को भेड़ नहीं बेचता। दूसरे दिन आप आइएगा, मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। आपके लिए क्या ये सही रहेगा? हॉर्समैन खुश होकर बोलता है, तुम बहुत ही समझदार और चालाक लड़के हो, प्लीज़ मेरे दोस्त बनोगे? और ये बांसुरी ले लो, हम दोनों की दोस्ती की निशानी। हॉर्समैन उसे अपनी बांसुरी दे देता है संपत को, और संपत अपनी बांसुरी को रोज बजाता है, जिसकी मधुर धुन से वो और गांव वाले सब खुश होते हैं। थैंक यू।